Good morning, children. Welcome to English class. Today we'll read a chapter from your Honeydew book. This is chapter 4, Bipin Chaudhary's Lapse of Memory, written by Satyajit Roy. Children, in this chapter you will come to know about a man named Bipin Chaudhary who faced a unique problem. He had lost his memory of the incident when he had a trip to Ranchi with his friends. In the end of the lesson, he discovers that actually there is no lapse of memory, but his friend Chunnilal had tricked him in order to punish him. So, let's begin with the chapter now. Every Monday, on his way back from work, Bipin Chaudhary would drop in at Kali Charan's in New Market to buy books. Crime stories, ghost stories and thrillers. He had to buy at least 5 at a time to last him through the week. He lived alone, was not a good mixture, had few friends and didn't like spending time in idle chat. Today at Kali Charan's, Bipin Babu had the feeling that someone was observing him from close quarter. He turned round and found himself looking at a round-faced, meek-looking man who now broke into a smile. "I don't suppose you recognize me." Let us see the meaning. Thrillers means a novel, play or film with an exciting plot, typically involving crime or espionage. Close quarters means very near to a person or a thing. Idle chat means unnecessary. Meek means quiet, humble. So children, in this paragraph, the writer says that it was a routine for Bipin Chaudhary to stop at Kali Charan's in New Market to buy books every Monday when he was on his way home from work. He usually bought crime stories, ghost stories and thrillers. He bought at least 5 books to keep him occupied at home for a week. He lived alone and did not have many friends as he was not very sociable. He was not very interested in spending time to indulge in small talk that had no meaning. On that particular day, Bipin Babu felt as if someone was looking at him continuously from a close distance. As he turned around to find who it was, he saw a round-faced, humble-looking man staring at him. On seeing him, Bipin Babu made eye contact. The man started smiling and exclaimed that he did not expect Bipin Babu to identify him. तो इसमें क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं चिल्ड्रन? एक बार हिंदी में भी मैं बता दूं आपको. तो यहाँ पे क्या है कि जो बिपिन चौधरी हैं वो उनकी आदत थी कि वो कालीचरण के शॉप पर जाते थे और हर मंडे को जाते थे और वहाँ से कुछ ऐसी बुक्स लेके आते थे जो कि थ्रिलर्स की होती थी और जिसमें कुछ घोस्ट की स्टोरी होती थी. इस तरह की बुक्स वो मंडे को कालीचरण की दुकान से लाते थे और कम से कम वो 5 बुक्स लाते थे ताकि उनका पूरा वीक उन बुक्स को पढ़ करके वो स्पेंड कर सके. दूसरी बात क्या बताई जा रही है इस पैराग्राफ में चिल्ड्रन कि वो अपना अकेले रहना पसंद करते थे. उनके ज़्यादा कोई खास दोस्त नहीं थे और ना ही उन्हें फालतू में दोस्तों से मिलना और अननेसेसरी टॉकिंग करना अच्छा लगता था. क्लियर? लेकिन हुआ क्या कि एक दिन जब बुक्स खरीद करके जब वो चलने को हुए तो उन्होंने देखा कि एक आदमी था जो कि लगातार उनको स्टेयर कर रहा था, देख रहा था. और फिर उन्होंने सोचा कि आखिर ये कौन है. और फिर जब वो टर्न हुए तो उस व्यक्ति ने मुस्कुरा कर कहा कि अरे वाह, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि तुम मुझे यहाँ मिलोगे. अच्छा ये बताओ,
बातचीत करने लग गया वो आदमी, ठीक है। अब बिपिन चौधरी हैरान है, वो कह रहा है कि भाई मैं आपको नहीं जानता हूँ, मैं आपको नहीं पहचानता हूँ। लेकिन वो आदमी कह रहा है, अरे वाह, इतना जल्दी तुम सब कुछ भूल गए। यानी वो एहसास दिलाने की कोशिश कर रहा है कि वो आदमी उसका फ्रेंड है, उसका दोस्त है। क्लियर चिल्ड्रन? I don't suppose you recognize me. Have we met before? Asked Bipin Babu. The man looked greatly surprised. We met every day for a whole week. I arranged for a car to take you to the Hudru Falls in 1958 in Ranchi. My name is Parimal Ghosh. Ranchi? Now Bipin Babu realized that it was not he, but this man who was making a mistake. Bipin Babu had never been to Ranchi. He had been at the point of going several times but never made it. He smiled and said, "Do you know who I am?" So children, in this paragraph, Bipin Babu asked the man if they met before. The man had a surprised expression on his face and made efforts to remind Bipin Babu of who he was. He told Bipin Babu that they meet each day for a week in Ranchi in 1958. He claimed himself to be a Parimal Ghosh and even mentioned that he arranged a car for Bipin Babu to the Hudru Falls. On hearing Ranchi, Bipin Babu realized that it was not him, but the man who was mistaken, because he had never been to Ranchi, even though he wanted to visit Ranchi and had been at the point of going there multiple times. Thus, with a gentle smile, he asked the man, Parimal, if he really knew who he was. Now children, let me explain you this paragraph in Hindi also. So children, यहाँ पे होता क्या है कि कालीचरण के शॉप पर जब बिपिन बाबू बुक्स खरीद रहा होता है तो एक इंसान उसे बहुत देर से घूर रहा होता है, देख रहा होता है। बिपिन चौधरी ने उससे आई कांटेक्ट भी किया तो बिपिन चौधरी को लगा कि कुछ गड़बड़ है, तो उसने कंफर्म किया कि भाई लगता है आपको गलतफहमी हुई है, आप मुझे पहचान नहीं रहे हैं। तो वो जो स्ट्रेंजर है, वो जो इंसान है जो लगातार बिपिन चौधरी को देख रहा है, वो कहता है नहीं नहीं, मैं आपको पहचान रहा हूँ। तो बिपिन चौधरी कहते हैं तो अच्छा ये बताओ, क्या हम पहले कभी मिले हैं क्या? तो जो इंसान है वो कहता है कि अरे मिले हैं, अरे हम तो एक हफ्ते साथ साथ रहे हैं रांची में। अरे भूल गए, मैंने ही तो तुम्हारे लिए कार अरेंज की थी हुड्रू फॉल जाने के लिए, और ये बात 1958 की है। अब बिपिन चौधरी बड़ा हैरान हो जाता है, उसे लगता है इस आदमी को गलतफहमी हुई है। तो बिपिन चौधरी उसको बोलता है कि भाई लगता है आप मुझे सही से पहचान नहीं पा रहे हैं, मैं तो कभी रांची गया ही नहीं हूँ। रांची के लिए मैंने प्लानिंग कई बार की लेकिन कभी जा नहीं पाया। लगता है आप मुझे पहचान नहीं पा रहे हैं, तो ये बताइए कि क्या आप मुझे सही में पहचान रहे हैं? उसके बाद I'll explain you the same paragraph in Hindi children. So यहाँ पर जब कालीचरण की शॉप पर एक स्ट्रेंजर बिपिन बाबू को बार बार देख करके हंस रहा होता है, तो बिपिन चौधरी उसके पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं, क्या हम पहले मिले हैं क्या? ये बिपिन चौधरी उस स्ट्रेंजर से पूछता है जो कि
उन्हें देख करके मुस्कुरा रहा होता है। उसके बाद जैसे ही विपिन बाबू ने ये क्वेश्चन किया कि क्या हम पहले मिले हैं, वो इंसान आश्चर्यचकित हो गया और वो कहता है कि मिले हैं? अरे हम तो हर दिन मिलते रहे हैं और लगातार 1 वीक से हर दिन मिल रहे हैं। और आगे बताता है कि मैंने ही तो आपके लिए हुड्रू फॉल्स जाने के लिए कार का अरेंजमेंट किया था इन 1958 रांची में। मेरा नाम परिमल घोष है। जैसे ही वो अपना नाम बताता है, बिपिन चौधरी चौंक जाता है और वो कहता है रांची, और उसके बाद बोलता है लगता है आपको गलतफहमी हुई है, मैं कभी रांची गया ही नहीं। हाँ, मैंने प्लान तो कई बार किया था जाने के लिए, लेकिन मैं जा ही नहीं पाया। और उसके बाद बिपिन चौधरी परिमल घोष से कहता है कि क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूं? The man raised his eyebrow, bit his tongue and said, "Do I know? Who doesn't know?" बिपिन चौधरी। जैसे ही बिपिन चौधरी परिमल घोष से कहता है कि क्या तुम मुझे जानते हो, परिमल घोष आश्चर्यचकित हो गया। उसने अपनी भौहों को एकदम आश्चर्यचकित ढंग से आगे पीछे किया और कहा, जानता हूं? अरे आपको कौन नहीं जानता है? बिपिन बाबू now turned towards the bookshelf and said, "Still you are making a mistake. One often does. I have never been to Ranchi." अब बिपिन चौधरी परिमल घोष से कहता है कि भाई आप मिस्टेक कर रहे हो, मैं कभी रांची गया ही नहीं, और आप बार बार मुझसे कह रहे हो कि आप मुझे जानते हो, आपने मेरे लिए ट्रिप अरेंज की थी हुड्रू फॉल के लिए। तब इतना कहने के बाद बिपिन बाबू टर्न टुवर्ड्स द बुक शेल्व्स एंड सेड, "Still you are making a mistake. One often does. I have never been to Ranchi." और फिर वो बिपिन बाबू कहते कहते बुक शेल्फ्स की ओर टर्न हो जाता है और परिमल घोष को कहता है, आप ज़रूर मिस्टेकन हैं, आपको गलतफहमी हो रही है, और कहता है कि मैं तो कभी रांची गया ही नहीं। The man now laughed aloud. So children, यहाँ पर जब बिपिन बाबू परिमल घोष से बार बार ये कहते हैं कि अरे भाई मैं रांची कभी गया ही नहीं हूँ, तो परिमल घोष उनकी ये बातें सुन करके जोर से हंसता है और कहता है, "What are you saying? Mr. Chaudhary, you had a fall in Hudru and cut your right knee. I brought you iodine. I had fixed up a car for you to go to Netarhat the next day, but you couldn't because of the pain in the knee." अब यहाँ पर जो परिमल घोष है बिपिन चौधरी को याद दिलाने की कोशिश कर रहा है, कह रहा है, अरे क्या बात कर रहे हैं, आप जब हुड्रू फॉल गए थे तो वहाँ आप गिर गए थे, जिसके कारण आपकी राइट नी में यानी दाहिनी घुटने में चोट लग गई थी। मैं आयोडीन लेके आया था और उसके बाद मैंने कार फिक्स करी थी आपको नेतारहट नेक्स्ट डे ले जाने के लिए, लेकिन आप नहीं जा सके क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा घुटने में दर्द हो रहा था। कांट यू रिकॉल एनीथिंग? और उसके बाद ये सारी बातें बताने के बाद परिमल घोष बिपिन बाबू से कहते हैं
कि क्या आपको कुछ भी याद नहीं? Someone else you know was also in Ranchi at that time, Mr. Dinesh Mukherjee. You stayed in a bungalow. You said that you didn't like hotel food and would prefer to have your meals cooked by a bawarchi. Mr. Mukherjee stayed with his sister. So, कुछ और बातें याद दिलाते हुए ये जो परिमल घोष है वो बिपिन चौधरी से कहता है कि समथिंग एल्स यू नो वॉज ऑल्सो इन रांची दैट टाइम। उसके बाद एक और घटना बताते हुए कहते हैं कि चलो ये बात तुम नहीं जानते, लेकिन ये तो जानते होगे कि एक बार आप मिस्टर दिनेश मुखर्जी के पास गए थे और उन्हीं के बंगले में आपने स्टे किया था। क्यों किया था? क्योंकि आपको होटल का भोजन अच्छा नहीं लगता था। और ये जो दिनेश मुखर्जी थे ये अपनी सिस्टर के साथ वहाँ रहते थे। You had a big argument about the moon landing, remember? और उसके बाद वो कुछ और बातें भी याद दिलाते हैं परिमल घोष बिपिन चौधरी को कि याद करिए आपका बहुत बड़ा आर्गुमेंट हो गया था मून लैंडिंग के बारे में। क्या आपको ये भी याद नहीं? I will tell you more. You always carried a bag with your books in it on your sightseeing trips. उसके बाद जो ये परिमल घोष है वो और याद दिलाने की कोशिश करता है और बिपिन बाबू से कहता है कि अरे आपको याद नहीं है, आप जब भी जाते थे तो अपने बैग में कुछ बुक्स लेके जाते थे और जिस जगह को देखने जाते थे उससे रिलेटेड आपके पास बुक्स भी हुआ करते थे। एम आई राइट और नॉट? और पूछता है मैं सही हूँ कि नहीं। बिपिन बाबू स्पोक क्वाइटली, हिज आईज स्टिल ऑन द बुक्स। जो बिपिन बाबू हैं वो बड़े ही ध्यान से, बड़े ही क्वाइटली ढंग से उसकी बातों को सुन रहे थे, लेकिन क्योंकि वो शॉप से बुक खरीद रहे थे ना तो उनका ध्यान बुक्स के ऊपर भी था। वो बार बार अपनी बुक्स को भी देख रहे थे। फिर बिपिन चौधरी क्वेश्चन करते हैं परिमल घोष से, कहते हैं विच मंथ इन 58 आर यू टॉकिंग अबाउट? 58 बेटा ये 1958 है, ठीक है। तो यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में ही दिया है 58, दैट मीन्स 1958। तो बिपिन चौधरी जो है वो परिमल घोष से कहता है कि ये बताओ कि जो तुम मुझे ये सारी घटना बता रहे हो रांची की, ये किस सन में हम वहाँ गए थे? क्या ईयर था? ईयर बताओ तो। द मैन सेड अक्टूबर। तो उस परिमल घोष ने कहा कि अक्टूबर मंथ में हम वहाँ गए थे। और विच मंथ इन 58 आर यू टॉकिंग अबाउट? यानी 1958 के किस मंथ के बारे में आप मुझसे पूछ रहे हो कि मैं वहाँ गया था? ये किसने कहा बेटा? ये बिपिन चौधरी ने पूछा परिमल घोष से। तो परिमल घोष ने जवाब दिया कि इन द मंथ ऑफ अक्टूबर आप रांची आए थे। नो सर, said Bipin Babu, I spent puja in 1958 with a friend in Kanpur. और उसके बाद बिपिन बाबू कहते हैं नहीं नहीं सर, आपसे लगता है भूल हुई है। मैं अक्टूबर मंथ में अपने एक फ्रेंड के यहाँ था, कानपुर गया था। क्यों गया था? क्योंकि उन्होंने मुझे पूजा पर बुलाया था, तो मैं वो पूजा अटेंड करने के लिए अक्टूबर मंथ में अपने फ्रेंड के पास कानपुर गया था। यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, गुड डे। और इतना कह करके बिपिन चौधरी परिमल घोष से कहता है कि नहीं नहीं, आपको मिस्टेक हो रही है, आप मुझे कुछ और समझ रहे हैं, जो आप समझ रहे हैं वो मैं हूँ नहीं। इतना कह करके वो अपनी बुक्स उठाता है और उससे गुड डे बोल करके उस शॉप से, कालीचरण की शॉप से निकल करके अपने कार के लिए रवाना होता है।
बट द मैन डिडंट गो नॉर डिड ही स्टॉप टॉकिंग. लेकिन परिमल घोष जो था वो गया ही नहीं और ना ही उसने बात करना बंद किया. वेरी स्ट्रेंज. One evening I had tea with you in a veranda of your bungalow. You spoke about your family. और बेचारा बिपिन चौधरी जा रहा था तो फिर से टॉकिंग करना शुरू कर दिया. यानी वो इतना टॉकेटिव था कि बिपिन चौधरी जाने लग गए, गुड डे भी बोल दिया, फिर भी वो इंसान जो है, वो परिमल घोष है, वो नहीं जा रहा था, वो बातें चालू कर रहा था, कंटिन्यू कर रहा था. और फिर बाद में बोलता है कि अरे क्या बात है, ये तो बहुत स्ट्रेंज सी बात है कि आप सब भूल गए हो. अच्छा, एक और इंसिडेंट मैं बताता हूँ, शायद उससे आपको याद आ जाए. तो वो कहता है, One evening I had tea with you in a veranda of your bungalow. You spoke about your family. You said you had no children and that you had lost your wife 10 years ago. और उसके बाद बोलता है कि देखिए, एक दिन शाम को मैं आपके बंगले पर आया था तो आपने मुझे अपनी फैमिली के बारे में बताया था. आपने ये मुझसे बताया था कि मेरा कोई भी चाइल्ड नहीं है, यानी मेरे बच्चे नहीं हैं, और आपकी जो वाइफ है वो 10 साल पहले ही गुजर चुकी हैं. Your only brother had died insane, which is why you didn't want to visit the mental hospital in Ranchi. और कहता है कि आपने अपने भाई के बारे में भी बताया था जो कि ये रांची के जो मेंटल हॉस्पिटल है वहाँ पर उनका भी देहांत हो गया था. तो ये सारी बातें तो आपने मुझे बताई थी ना. When Bipin Babu had paid for the books and was leaving the shop, the man was still looking at him in utter disbelief. तो चिल्ड्रन, अटर डिसबिलीफ मतलब क्या होता है? कंप्लीट सरप्राइज, यानी आश्चर्यचकित होकर के. अब जो बिपिन बाबू है, इतनी बात उसकी सुनते हैं क्योंकि उन्होंने शॉप से बुक्स खरीदी थी, उसका पेमेंट देने के लिए बुक शॉप पर जाते हैं, जहाँ पर काउंटर पर जाते हैं, और उसके बाद वो पेमेंट जमा करते हैं और फिर वहाँ से निकल लेते हैं. लेकिन ये जो परिमल घोष है, ये आश्चर्यचकित ढंग से बिपिन चौधरी को देखता ही रहता है. सो चिल्ड्रन, नाउ लेट्स read the second part of the story here. Bipin Babu's car was safely parked in Batram Street by the Lighthouse Cinema. अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? क्योंकि बिपिन बाबू ने अपनी कार को लाइट हाउस सिनेमा हॉल के पास, बैटरम स्ट्रीट नाम है, यहाँ पर इन्होंने अपनी कार को सेफली पार्क किया हुआ था. और फिर वो उस जगह पर जाते हैं और he told the doctor as he got into the car, just drive by the Ganga, will you सीताराम. तो और क्या कहते हैं ये बिपिन चौधरी. चिल्ड्रन, बिपिन चौधरी थोड़ा सा परेशान तो हो ही जाते हैं क्योंकि परिमल घोष ने इतना इंसिडेंट बताया, तो इन्हें ऐसा लगा कि ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं ये सारी चीज़ें कैसे भूल सकता हूँ. तो जब वो अपनी कार में बैठते हैं तो उनका जो ड्राइवर होता है ना चिल्ड्रन, उसका नाम रहता है सीताराम. तो वो उसको बोलते हैं कि ऐसा है, घर मत चलो डायरेक्ट, ऐसा है क्योंकि वहाँ पर गंगा नदी बहती है. तो वहाँ पर बोलता है कि ऐसा है सीताराम, तुम ऐसा करो, मुझे थोड़ी देर के लिए गंगा नदी के किनारे ले चलो. ठीक है बेटा. उसके बाद ड्राइविंग अप द स्ट्रैंड रोड, बिपिन बाबू रिग्रेटेड हैविंग पेड सो मच अटेंशन टू द इंट्रूडर. तो यहाँ पर क्या होता है ना कि अब वो तो कार में बैठ गए, ड्राइवर ने बोला कि ठीक है, जैसा आप कह रहे हैं मैं आपको गंगा नदी के किनारे पर ही ले जाऊंगा. अब ये बैठे रहते हैं ये बिपिन चौधरी. तो ये अपने आप को पछतावा के तौर पर सोचते हैं कि अरे मैं ही बेवकूफ़ है, मुझे तो ऐसे व्यक्ति से बात ही नहीं करनी चाहिए, वो पता नहीं क्या क्या बोल करके मुझे हैरान करे पड़ा हुआ है. ठीक है, वो अपने आप ही पछताता है और बताता है कि मुझे उसकी बातों पर बिल्कुल ध्यान ही नहीं देना चाहिए, यानी परिमल घोष की बातों पर. He had never been to Ranchi, no question about it. और बोलता है कि अरे जब मैं रांची गया ही नहीं
तो वो तमाम प्रश्न मुझसे कर रहा है, तो उसको तो कोई क्वेश्चन करना ही नहीं चाहिए। It was inconceivable that he should forget such an incident which took place only 6 or 7 years ago. और अब बिपिन चौधरी सोचता है ऐसे तो नहीं हो सकता कि 6-7 साल पहले की बातें मैं इतना जल्दी भूल जाऊं, ऐसा तो अभी मेरे साथ कभी नहीं हुआ, और इतने नज़दीक की बातें हैं, 30 साल की बात होती, 25 साल की बात होती तो मैं मान लेता, लेकिन ये तो 6-7 साल पहले की बात है। और वो बोल रहा है कि आप रांची आए हो, जबकि मैं रांची गया ही नहीं, तो मैं कैसे भूल सकता हूँ। वो कार में बैठा था ना, तो ये सारी चीज़ें वो सोच रहा था। ही हैड एन एक्सीलेंट मेमोरी, और इसमें बताया जा रहा है स्टोरी में कि जो बिपिन चौधरी है उसकी जो मेमोरी है यानी याददाश्त की क्षमता बहुत एक्सीलेंट है, बहुत अच्छी है। वो ऐसे इतना वो नहीं था कि पिछली बातें वो भूल जाए। अनलेस बिपिन बाबूज हेड रील्ड वॉज ही लूजिंग हिज माइंड। अब बेटे क्या होता है कि यहाँ पे कुछ हार्ड वर्ड्स की मीनिंग देख लेते हैं। हेड रील्ड मतलब ही वॉज शॉक्ड एंड कंफ्यूज। अब बिपिन बाबू कार में बैठे बैठे सोचने लग जाता है कि अरे क्या मेरी मेमोरी इतनी कमज़ोर हो गई है कि मैं 6-7 साल पहले की घटना भूल रहा हूं। बट हाउ कुड दैट बी, ऐसा कैसे हो सकता है। ही वॉज वर्किंग डेली इन ऑफिस, इट वॉज अ बिग फर्म एंड ही वॉज डूइंग अ रेस्पॉन्सिबल जॉब। और कहता है अपने आप से क्वेश्चन करता है ऐसे कैसे हो सकता है, सोच रहा है वो बैठे बैठे कि ऐसे कैसे हो सकता है, मैं एक रेस्पॉन्सिबल पर्सन हूँ और एक अच्छे पद पर हूँ और एक अच्छे ढंग से कंपनी में काम भी कर रहा हूँ। अभी तक किसी ने कभी भी ऐसा नहीं कहा कि मैंने कोई गलती की। He wasn't aware of anything ever going seriously wrong. और बिपिन बाबू सोचता है कि मैंने तो अभी ऐसे कभी देखा भी नहीं कि मुझसे कोई ऐसी गलती हुई हो कि मैं भूल गया हूँ, ऑफिशियल काम में जो मैंने सोचा हो वो मैं भूल गया हूँ, तो लोगों ने मुझे रियलाइज़ किया हो कि सर आपने ये गलती कर दी, आपने ऐसा कहा था। तो यानी कुल मिलाकर के वो ये बताने, वो अपने आप को संतोष देने की कोशिश कर रहे हैं बिपिन बाबू कि ऐसी कभी मेरे साथ कोई घटना घटित ही नहीं हुई जिससे ये लगे कि मेरी मेमोरी कमज़ोर हो गई है। ओनली टुडे ही स्पोक फॉर हाफ एन आवर एट एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग एंड येट। और उसके बाद कहता है कि आज ही मैं हाफ एन आवर की मीटिंग अपने फर्म में अटेंड किया हूँ। एंड येट द मैन न्यू अ ग्रेट डील अबाउट हिम हाउ। और फिर सोचता है कि और ये जो इंसान है, जो ये आदमी है परिमल घोष, जब ये मुझसे मिला तो वो तो मेरे बारे में बहुत सारी बातें जानता है। आखिर कैसे? He even seemed to know some intimate details, the bag of books, wife's death, brother's insanity. तो वो बोलता है कि अरे इतनी मतलब पारिवारिक बात भी वो जानता है, ऐसे कैसे हो सकता है। जैसे कि हम अपने परिवार के बारे में सबको तो नहीं बताते फिरते, हमारा बहुत ही जो क्लोज होता है उसी के बारे में, उसी से हम अपनी फैमिली की बातें शेयर करते हैं। तो ये जो बिपिन चौधरी है ये बड़ा हैरान हो गया है कि वो मेरे बारे में इतनी डिटेल सी बातें जानता है कि मेरे बच्चे नहीं हैं और मैं जहाँ पर भी जाता हूँ मैं बुक्स का शौकीन हूँ, मैं बुक्स लेके जाता हूँ, मेरे ब्रदर के साथ क्या हुआ, ये सारी बातें उसको कैसे मालूम पड़ गई भाई, सोच करके हैरान हो रहा होता है। द ओनली मिस्टेक वॉज अबाउट हिज हैविंग गॉन टू रांची, नॉट अ मिस्टेक, अ डेलिब्रेट लाई। और अब बता रहा है, अपने आप को संतोष दे रहा है बिपिन चौधरी कि वो उसका मानना है कि मैं रांची गया था, लेकिन बिल्कुल वो झूठ बोल रहा है, जानबूझ करके वो झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ मेरे साथ हुआ ही नहीं है। तो चिल्ड्रन, बिपिन बाबू सोच करके बहुत पछताता है कि अरे
ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं ये सारी बातें भूल गया हूँ, और ये जो आदमी है वो इतना कुछ मेरे बारे में कैसे जानता है। उसने सारी बातें तो सही बताई, लेकिन एक बात जो है रांची के बारे में कि मैं रांची गया था, सिर्फ यही एक बात उसने गलत बताई है। तो वो जानबूझ करके मुझसे झूठ बोल रहा है, क्योंकि मैं रांची गया ही नहीं था। और इन 1958 में मैं अपने दोस्त के पास, जिसका नाम था हरिदास, उसके पास गया था, और मैं चाहूँ तो उससे कंफर्म भी कर सकता हूँ। All Bipin Babu had to do was write to know there was no way of writing to Haridas. Bipin Babu suddenly remembered that Haridas had left with his wife for Japan some weeks ago and he didn't have his address. अब यहाँ पर जो बिपिन चौधरी जी हैं, जिन्हें बिपिन बाबू के नाम से भी जाना जाता था, वो कंफर्म करना चाहते थे अपने दोस्त से जो कि कानपुर में था। तो उन्होंने सोचा कि चलो मैं पहले अपने दोस्त से कंफर्म कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे अनुसार तो मैं अक्टूबर मंथ में कानपुर में गया था, तो मैं उससे कंफर्म कर लेता हूँ चिट्ठी लिख करके। तो अचानक उन्हें याद आया कि अरे मैं चिट्ठी नहीं लिख सकता हरिदास को, क्योंकि वो तो अपनी वाइफ के साथ कुछ हफ्ते पहले कहाँ चले गए, जापान चले गए, एंड ही डिडंट हैव हिज एड्रेस। और अब उनके पास तो हरिदास का पता भी नहीं था। बट वेयर वॉज द नीड फॉर प्रूफ? He himself was fully aware that he didn't been to Ranchi and that was that. तो अब अपने आप को ही संतोष देता है कि अरे मैं प्रमाण क्यों ढूंढूं, मुझे इतना तो याद है 100% कि मैं रांची गया ही नहीं, तो मैं क्यों दूसरों से पूछूं कि कंफर्म करूं कि क्या मैं कानपुर में ही था। हरिदास से मैं क्यों कंफर्म करूं? The river breeze was bracing and yet a slight discomfort lingered in Bipin Babu's mind. अब क्योंकि वो नदी के किनारे बैठा हुआ था, इसलिए उसे ठंडी ठंडी हवा भी लग रही थी, लेकिन उस हवा का आनंद वो नहीं उठा पा रहा था, क्योंकि अब वो मेंटली डिस्टर्ब हो गया था। उसको बहुत चिंता लग गई थी कि आखिर ऐसी क्या बात है, क्या सचमुच मैं अपनी मेमोरी खो रहा हूँ क्या, लूज कर रहा हूँ क्या? इस तरह से बिपिन बाबू सोचते रहे। अराउंड हेस्टिंग्स बिपिन बाबू डिसाइडेड टू रोल अप हिज ट्राउजर्स एंड टेक अ लुक एट हिज राइट नी। अब जैसे कि परिमल घोष ने बिपिन बाबू से कहा था ना कि तुम्हें चोट लग गई थी हुड्रू फॉल जाते समय, तो तुमने अपना ट्रिप कैंसिल किया कि आज नहीं जाएंगे करके। तो वो सोचता है चल जरा चेक तो कर लूँ कि मुझे अगर चोट लगी होगी तो निशान तो अभी होगा ही होगा। तो वो अपना जो ट्राउज़र है, जो पैंट है, उसको ऊपर उठाता है, जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं चिल्ड्रेन। तो वो कंफर्म करता है कि जरा देखूं तो अपनी राइट नी को अपना ट्राउज़र उठा करके देखता है। तब क्या होता है? देयर वॉज द मार्क ऑफ एन ओल्ड इंच लॉन्ग कट। इट वॉज इम्पॉसिबल टू टेल व्हेन द इंजरी हैड अकर्ड। अब क्या होता है चिल्ड्रेन कि जब वो अपना ट्राउज़र ऊपर करता है तो वो देखता है कि वहाँ पर मतलब एक छोटा सा इंच तक का कट बना था, लेकिन उसको खुद ही नहीं याद है, क्योंकि उस समय वो शायद बहुत ज़्यादा छोटे रहे होंगे कि ये इंजरी कब की है। तो अब वो और परेशान हो जाते हैं, क्योंकि परिमल घोष ने तो ये बताया कि तुम्हारी राइट नी में एक छोटा सा इंजरी भी है, और ये इंजरी आपको जब आप रांची आए थे तब लगी थी। ठीक है चिल्ड्रन? हैड ही नेवर हैड अ फॉल एज अ बॉय एंड कट हिज नी, ही ट्राइड टू रिकॉल सच एन इंसिडेंट बट कुडंट। अब ये जो बिपिन चौधरी है वो परेशान हो जाता है, अब सोच में पड़ जाता है आखिर इतना इतनी ऐसी बातें
भी उस परिमल घोष को पता है कि मुझे राइट नी में चोट लगी है। अब वो खुद कंफर्म नहीं कर पा रहे थे कि अरे ये चोट मेरी बचपन की है, और अगर बचपन की थी तो मुझे तो बिल्कुल याद ही नहीं है कि ये चोट मुझे लगी तो लगी कब। देन बिपिन बाबू सडनली thought of Dinesh Mukherjee. The man had said that Dinesh was in Ranchi at the same time. अब अचानक सोचते सोचते बिपिन बाबू को याद आता है कि उसने कहा था, परिमल घोष ने, कि दिनेश जो कि उनके फ्रेंड है बिपिन बाबू के, तो उसने दिनेश का भी नाम लिया था, दिनेश मुखर्जी का। तो उसे याद आता है, तो वो सोचते हैं चलो देखता हूँ, उनसे बातचीत कर लेता हूँ, शायद मुझे कंफर्म हो जाए। द मैन हैड सेड दैट दिनेश वॉज इन रांची एट द सेम टाइम। ठीक है, तो उसने जैसे कि कहा था ना उस आदमी ने कि दिनेश भी उस समय रांची में था जब आप रांची में थे। द बेस्ट थिंग श्योरली वुड बी टू आस्क हिम। अब बिपिन बाबू ने सोचा चलो मैं दिनेश से ही कंफर्म कर लेता हूँ कि भाई दिनेश, क्या अक्टूबर के मंथ में मैं तुम्हारे साथ रांची था क्या? ये बात कंफर्म करने के लिए उसने सोच ली। ही लिव्ड क्वाइट नियर इन बैनिंदन स्ट्रीट। ठीक है, बैनिंदन स्ट्रीट में वो नज़दीक ही रहता था। तो उसने सोचा चलो मैं जाकर के बैनिंदन स्ट्रीट में जाकर के मैं उससे कंफर्म कर लेता हूँ। व्हाट अबाउट गोइंग राइट नाउ? और फिर सोचता है अभी चला जाऊँ क्या कंफर्म करने के लिए? बट देन इफ ही हैड रियली नेवर बीन टू रांची, what would Dinesh think if बिपिन बाबू asked for a confirmation? अब चिल्ड्रेन, अब बिपिन बाबू ये भी सोचता है कि अगर बाय द वे मैं रांची नहीं गया होऊंगा, कभी नहीं गया होऊंगा, और अगर ये बात मैं दिनेश मुखर्जी से पूछूंगा तो वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा कि ये ऐसा मेरे से क्यों कंफर्म कर रहा है? क्या इनको अपने बारे में ये तक याद नहीं है, इसीलिए ये मेरे पास आए हैं कंफर्म करने के लिए? ये सोच करके अब क्या होता है, ही वुड प्रोबेबली कंक्लूड बिपिन बाबू वॉज गोइंग नट्स। गोइंग नट्स मतलब मैड। अब बिपिन चौधरी ये सोचता है कि अगर मैं ये मुखर्जी से पूछूंगा, दिनेश मुखर्जी से, कि मैं और आप रांची में थे क्या, तो वो मुझे सोचेगा कि मैं पागल हो गया हूँ, इतनी सी भी बात मुझे याद नहीं है। नो, इट वुड बी रिडिकुलस टू आस्क हिम। और फिर बोलता है कि नहीं नहीं, अगर मैं ऐसी बात दिनेश मुखर्जी से पूछूंगा तो ये सही नहीं लगेगा। उसे थोड़ा सा अंदर से बेकार सा लगा, अच्छा नहीं लगा कि अगर मैं ऐसे पूछूंगा तो फिर मेरी बदनामी होगी, मेरे बारे में वो उल्टा सीधा कुछ सोचेगा कि मैं पागल हो गया हूँ। एंड ही न्यू हाउ रथलेस दिनेश स्कैसम कुड बी। अब यहाँ पे क्या बोलते हैं कि दिनेश के बारे में वो अच्छी से ये जानता है कि जो दिनेश है वो किस तरह का इंसान है। ठीक है चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रन यहाँ पर बिपिन बाबू ने सोचा कि अगर वो दिनेश के पास जाएंगे तो वो भी उसके बारे में बहुत ही गलत सोचेगा। वो सोचेगा कि ये पागल हो गए हैं, और क्योंकि दिनेश का जो व्यवहार था वो अच्छा नहीं था, वो किसी के प्रति सिंपैथी नहीं रखता था, इसीलिए उसने सोचा कि दिनेश से बात करने की मुझे ज़रूरत नहीं है। उसके बाद क्या हुआ चिल्ड्रन? सिपिंग अ कोल्ड ड्रिंक इन हिज एयर कंडीशन लिविंग रूम, बिपिन बाबू फेल्ट एट ईज अगेन। अब बिपिन बाबू अपने रूम में हैं और वो एक कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, एयर कंडीशन उनका ऑन है, एंड नाउ ही इज़ फीलिंग क्वाइट कंफर्टेबल इन हिज रूम। एंड इसलिए सच अ न्यूसेंस जस्ट बिकॉज दे हैव नथिंग एल्स टू डू, दे गो अबाउट गेटिंग इनटू अदर पीपल्स। और सोचने लग जाते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अपना कोई काम धाम नहीं रहता है, वो दूसरों को परेशान करने में लगे रहते हैं। ऐसा ये जो बिपिन चौधरी है ये सोच रहा होता है।
After dinner, snuggling in bed with one of the new thrillers, Bipin Babu forgot all about the man in New Market. अब क्या हुआ चिल्ड्रेन, अब बिपिन बाबू थोड़ा कंफर्टेबल फील करने लग गए थे और उन्होंने रात का डिनर लिया और उसके बाद अपने रूम में सोने के लिए चले गए। जैसे कि हमेशा सोते समय वो बुक्स पढ़ना उनका शौक था और उन्होंने अपनी बुक उठाई और पढ़नी शुरू कर दी। बिपिन बाबू फॉरगॉट ऑल अबाउट द मैन इन न्यू मार्केट। दैट मीन्स कि अब वो बुक में पूरी तरह से डूब गए थे। ही वॉज बिजी इन रीडिंग द बुक एंड ही फॉरगेट ऑल अबाउट द मैन whom he met in the market. Next day in the office, Bipin Babu noticed that with every passing hour, the previous day's encounter was occupying more and more of his mind. अब क्या हुआ चिल्ड्रन, अगले दिन जब वो ऑफिस गए तो उनको ऐसा लग रहा था अपने प्रीवियस दिन के बारे में, जो घटना उनके साथ घटित हुई थी पिछले दिन के बारे में वो बहुत ज़्यादा सोचने लग गए थे। If the man knew so much about Bipin Babu, how could he make such a mistake about the Ranchi trip? पिछले प्रीवियस दिन के बारे में बिपिन बाबू बार बार क्या सोच रहे थे, वो उस इंसान के बारे में सोच रहे थे जो उससे उन्हें मार्केट में मिला था और वो हैरान हो रहे थे, आखिर ऐसा इंसान जो मेरे बारे में इतनी डिटेल बातें जानता है तो वो कैसे मिस्टेक कर सकता है, रांची ट्रिप के बारे में वो कैसे मिस्टेकन हो सकता है। Just before lunch, Bipin Babu decided to ring up Dinesh Mukherjee. It was better to settle the question over the phone. At least the embarrassment on his face wouldn't show. ठीक है, तो चिल्ड्रन अब क्या हुआ, अब इनसे रहा नहीं गया बिपिन चौधरी से, दिमाग इनका बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया। तो इन्होंने सोचा कि अरे चलो जो भी दिनेश मुखर्जी समझे उनसे बात कर ही लेता हूँ, ताकि ये जो लगातार मेरे मन में मेरे माइंड में ये जो क्वेश्चन अराइज हो रहा है, ये क्वेश्चन मेरा अराइज होना बंद हो जाएगा, यानी मुझे थोड़ी सी संतुष्टि मिलेगी। और उन्होंने क्या किया, सोचा कि घर नहीं जाऊँगा उनके, पहले तो सोचा था ना कि घर जा कर के पूछ के आता हूँ, उसके बाद बोलता है कि नहीं बात थोड़ी सी ही करनी है, मैं फ़ोन से ही कंफर्म कर लेता हूँ। और फिर उन्होंने 235616, दिस इज द नंबर चिल्ड्रन, ही डायल्ड दिस नंबर, बिपिन बाबू डायल्ड द नंबर, क्लियर। हेलो, इज दैट दिनेश, दिस इज बिपिन हियर। जैसे कि हम फ़ोन उठाते हैं ना, तो उसी तरह से नंबर डायल करने के बाद बिपिन बाबू ने कहा कि क्या दिनेश हैं, और मैं बिपिन बोल रहा हूँ। वेल व्हाट्स द न्यूज़, और उसके बाद क्या समाचार है भाई, इस तरह से आवाज़ आती है। आई जस्ट वॉन्टेड टू फाइंड आउट इफ़ यू रिकॉल्ड एन इंसिडेंट विच टुक प्लेस इन 1958। अब देखो बेटा, जब वो बोलता है ना ये क्या करने के लिए, किस लिए आपने फ़ोन किया, क्या जानना चाहते हैं, तो वो जो बिपिन चौधरी हैं वो बोलते हैं कि आई जस्ट वॉन्टेड टू फाइंड आउट इफ़ यू रिकॉल एन इंसिडेंट विच टुक प्लेस इन 1958। वो दिनेश मुखर्जी से कहते हैं कि ऐसा है, मैं तो बस ऐसे ही इंसिडेंट के बारे में याद आ रही थी मुझे, तो मैंने सोचा कि आपसे भी कंफर्म कर लूं। तो कुछ आपको याद है रांची में क्या कुछ हुआ था हम लोग के साथ, इस तरह से ये जो बिपिन बाबू है ये कंफर्म करते हैं दिनेश मुखर्जी से। 1958 व्हाट इंसिडेंट, पूछता है कि 1958 में क्या इंसिडेंट। वर यू इन कैलकाटा राइट थ्रू दैट ईयर, दैट्स द फर्स्ट थिंग आई हैव गॉट टू नो। तो चिल्ड्रन यहाँ पर जो बिपिन चौधरी हैं वो दिनेश मुखर्जी को फ़ोन लगाते हैं, और जब दिनेश मुखर्जी फ़ोन उठाते हैं तो वो बिपिन चौधरी सोचते हैं कि हम इधर उधर गोल गोल घुमा करके बात ना करने के बजाय सही बात पर आते हैं। अच्छा, आप ये मुझे बताओ कि 1958 में क्या आप कैलकाटा में थे क्या, इस तरह से
पूछा गया। बिपिन बाबू ने क्वेश्चन किया दिनेश मुखर्जी से। दैट्स द फर्स्ट टाइम आई हैव गॉट टू नो। वेट जस्ट अ मिनट, 1958, जस्ट लेट मी चेक इन माई डायरी। उसके बाद ये जो दिनेश मुखर्जी है वो बोलते हैं अच्छा रुको ज़रा मैं अपने, क्योंकि दिनेश मुखर्जी यहाँ पे ये क्या शो ये कर रहे हैं कि वो कहीं पे भी अगर घूमने जाते हैं तो उस ट्रिप के बारे में वो डेट वो दिन उनकी आदत थी कि वो डायरी में लिखा करते थे, ठीक है। तो वो बोलते हैं कि ठीक है रुको, मैं अभी अपनी डायरी में देख करके आता हूँ, तब मैं बताता हूँ। For a minute there was silence. Bipin Babu could feel that his heartbeat had gone up. He was sweating a little. अब थोड़ी देर के लिए पॉज होता है, यानी दिनेश मुखर्जी जब तक डायरी में देखने के लिए जाता है तब तक कोई बातचीत नहीं होती और बिपिन चौधरी एकदम उसकी हार्ट बीट उनकी बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाती है, घबरा रहे होते हैं वो और उनका बदन पसीना पसीना हो जाता है। उसके बाद थोड़ी देर बाद ये जो दिनेश मुखर्जी हैं ये अपनी डायरी देख के आते हैं। आने के बाद जो रिसीवर उन्होंने नीचे रखा था उसको उठा करके बोलते हैं यस आई हैव गॉट इट, आई हैड बीन आउट ट्वाइस। तो बोलते हैं कि 1958 में मैं 2 बार बाहर गया था। तो ये पूछता है बिपिन चौधरी कि वेयर कहाँ गए थे, तब बताते हैं मुखर्जी वंस इन फेब्रुअरी नियर बाई टू कृष्णा नगर टू अ नेफ्यूज वेडिंग। और फिर बताते हैं पहली बार तो मैं गया था जब मैं अपने नेफ्यू का वेडिंग अटेंड कर रहा था, उस समय मैं गया था फेब्रुअरी मंथ में। एंड देन बट यू वुड नो अबाउट दिस वन द ट्रिप टू रांची। उसके बाद बोलता है दिनेश मुखर्जी कहते हैं एक बार तो मैं गया था फरवरी में वेडिंग अटेंड करने के लिए, और दूसरी बात तो तुम जानते ही हो कब गए थे, द ट्रिप टू रांची के बारे में तो तुम जानते हो, यू वर देयर टू, तुम तो मेरे साथ ही थे, तो इस ट्रिप के बारे में तो तुम खुद भी जानते होगे। दैट्स ऑल, बट व्हाट्स ऑल दिस स्लूथिंग अबाउट? स्लूथिंग मीन्स इन्वेस्टिगेटिंग। अब क्या हुआ जब उसने इस तरह से दिनेश मुखर्जी ने बिपिन चौधरी को बताया कि भाई एक बार फरवरी में गया था, दूसरी बार तो तुम साथ ही में थे, अक्टूबर के मंथ में ही हम लोग गए थे। तो अब कंफर्म हो गया बिपिन चौधरी को, और उसके बाद क्या बोलता है वो, नो आई जस्ट वांटेड टू एनीवे थैंक्स। इतना कह करके वो बोलता है नहीं नहीं मैं बस चाहता था कंफर्म करना, ठीक है ऐसा है, आप अब फ़ोन रख दो। तो फ़ोन रख देते हैं। अब बिपिन बाबू स्लैम द रिसीवर डाउन एंड ग्रिप्ड हिज हेड विद हिज हैंड, ही फेल्ट हिज हेड स्विमिंग। अब क्या होता है कि बातें पूरी हो जाती हैं, जो बिपिन चौधरी है जो रिसीवर कान में लगाए रहता है फ़ोन का, उसको नीचे रख देता है और अपने हाथों से अपने सिर को पकड़ लेता है, और उसका सिर मानो उसको चक्कर आ रहा हो, कुछ समझ नहीं पाता है कि आखिर क्या हो रहा है, ये मैं क्यों इतना सारी बातें भूल रहा हूँ, क्या उसको अपने ऊपर संदेह होने लग रहा है। A chill seemed to spread over his body, और उसका पूरा बदन एकदम जैसे मानो ठंडा पड़ गया हो। There were sandwiches in his tiffin box but he didn't eat them. He had lost his appetite. अब वो अपने लंच बॉक्स में कुछ सैंडविचेस लेके आए थे बिपिन चौधरी खाने के लिए, लेकिन उनका दिमाग इतना डिस्टर्ब हो गया था कि उन्होंने उसे खाया ही नहीं। Now children, let us move to the third part of this story. After lunch time, Bipin Babu realized that he couldn't possibly carry on sitting at his desk and working. अब ये सोचते हैं कि अरे अब मेरे को यहाँ पर बैठना मेरे लिए उचित नहीं लग रहा है, क्योंकि वो ऑफिस में ही थे, परेशान हो रहे थे। This had never happened in the 25 years he had been with the firm. और ये पहली बार वो इस चीज़ को एहसास कर रहे थे कि मैं ऑफिस में हूँ और मेरा काम में मन नहीं लग रहा है, मेरा माइंड डिस्टर्ब है। ऐसा उनके साथ पहले कभी 25 वर्षों में कभी भी ऐसा उनके साथ नहीं हुआ। He had a reputation for being a tireless, conscientious worker,
बट टुडे हिज हेड वॉज इन अ whirl। और वो जो है वो एक जो फर्म के लिए एक केयरफुल आदमी माना जाता था, बहुत अच्छा इंसान था, काम में भी अच्छा वर्क करता था, यानी लोग उनकी बहुत बड़ाई करते थे, लेकिन आज उनका जो सिर है वो मानो घूम रहा है। Back home at 2:30, Bipin Babu lay down in bed and tried to gather his wits together। अब घर आ जाते हैं, यानी ऑफिस पूरे दिन नहीं काम करते हैं, उनको बहुत परेशानी होती है। वो दिन भर जहाँ ऑफिस में काम करते थे तो वो ऑफिस से वापस घर आ जाते हैं और अपने रूम में जाते हैं और उसके बाद टायर्ड होकर के अपने बिस्तर पर, अपने बेड पर लेट जाते हैं। और अब उनको समझ में नहीं आ रहा है, बार बार कोशिश कर रहे हैं कि अपनी याददाश्त वापस लाने के लिए बार बार सोच रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं कि आखिर मैं रांची गया ही नहीं, कब गया, कैसे गया, ऐसा। और उस परिमल घोष को ये सब बातें कैसे मालूम पड़ रही है, बहुत परेशान है। He knew that it was impossible to lose one's memory through an injury in the head, but he didn't know of a single instant of someone remembering everything except one particular incident, and a fairly recent and significant one at that। उन्होंने ये तो सुना था कि भाई आदमी की मेमोरी चली जाती है, यानी याददाश्त चली जाती है, लेकिन वो तब जाती है जब किसी को सिर में चोट वोट लग जाती है। तो अभी तक उनको यही उन्होंने जाना था, समझा था, पढ़ा था कि लोगों की जो मेमोरीज यानी याददाश्त की क्षमता तब खत्म हो जाती है जब उनके मस्तिष्क में, माइंड में कहीं चोट लग जाती है। लेकिन मेरे साथ तो ऐसी कोई घटना नहीं हुई कि मैं अपनी मेमोरी भूल जाऊं। ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? ऐसा तो होना नहीं चाहिए। इस तरह से वो बार बार ये बातें सोच करके मेंटली बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहा है। He had always wanted to go to Ranchi, to have gone there, done things, and not to remember was something utterly impossible। अब यहाँ पे वो बार बार ये भी सोच रहा है कि मैं जाने के लिए तो मैंने बहुत बार सोचा था, लेकिन मैं कभी गया नहीं। और यहाँ पर ऐसा बताया जा रहा है कि मैं वहाँ गया था और दिनेश मुखर्जी ने भी ये कंफर्म कर दिया कि हाँ, मैं और तुम साथ ही में तो गए थे। इसलिए वो परेशान हो रहा था कि आखिर मैं रांची गया हूँ, मुझे सारी की सारी बातें याद है। पिछले काफ़ी साल, 6-7 साल नहीं, 10 साल पहले की बातें तो मुझे याद है। तो मेरे याददाश्त में से ये रांची वाला ही जो इंसिडेंट है वो कैसे हो सकता है कि मैं भूल जाऊं? वो बहुत परेशान है। At 7:30, Bipin Babu servant came and announced, Chunni Babu sir says it's very important। तो चिल्ड्रेन 7:30 पर बिपिन बाबू का जो सर्वेंट है वो बिपिन बाबू के पास आता है और बोलता है कि साहब, चुन्नी बाबू आए हैं और वो कह रहे हैं कि मुझे बहुत ही अर्जेंट है, मुझे बिपिन बाबू से मिलना है, यानी आपसे मिलना चाहते हैं। वो बता रहे हैं कि बहुत इम्पोर्टेंट काम से मैं आया हूँ। बिपिन बाबू न्यू दैट चुन्नी हैड कम फॉर चुन्नीलाल हैड बीन एट स्कूल विद हिम। अब यहाँ पर बिपिन बाबू जान रहे थे कि वो क्यों आया था, क्योंकि ये जो चुन्नीलाल हैं ये बिपिन बाबू के बचपन के दोस्त थे, तो उन्हें ये मालूम था कि वो आखिर आज आए हैं तो क्यों आए हैं। ही हैड बीन हैविंग अ रफ टाइम लेटली एंड हैड बीन कमिंग टू सी हिम अबाउट अ जॉब। वो जानते हैं कि वो किस लिए आए हैं, यानी कि ये जो चुन्नीलाल है ये जॉबलेस हो गए हैं, तो इसलिए ये अक्सर आते रहते हैं किसके पास? बिपिन बाबू के पास, क्योंकि बिपिन बाबू एक फर्म में काम करते हैं। तो चुन्नीलाल का ये मानना था कि ये अगर फर्म में काम करते हैं तो इनकी दोस्ती दूसरे फर्म के मालिकों से भी होगी, और अगर बिपिन चौधरी चाह लेंगे तो वो मेरे बारे में दूसरे अधिकारियों से बात कर सकते हैं और मुझे
कुछ छोटा मोटा जॉब दिला सकते हैं। इसीलिए ये चुन्नीलाल अक्सर मदद मांगने के लिए बिपिन बाबू के पास अक्सर आया करता था। लेकिन जो बिपिन बाबू हैं वो इसको इरिटेट करते हैं, जबकि ये इनका बचपन का दोस्त है और अब परेशानी में है, वो कुछ हेल्प चाहता है जो कि बिपिन बाबू कर सकते हैं लेकिन कर नहीं रहे थे। तो ये बार बार याद दिलाने के लिए आता है, जबकि इसका आना बिपिन बाबू को पसंद नहीं था, वो नहीं चाहते थे कि ये आए। बिपिन बाबू sent word that not only was it not possible for him to see चुन्नी now but not in several weeks। तो वो जो सर्वेंट है उससे ये कहलवा देते हैं कि जाओ और जाके कह दो कि मैं अभी, मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं चुन्नी से मिलूं, और अभी नहीं, आगे के कई सप्ताहों तक मैं उससे नहीं मिल सकता। यानी वो, उसके पास ऐसा कोई वर्क नहीं है लेकिन वो चुन्नीलाल की मदद नहीं करना चाहता था, जिसके कारण वो बार बार आ रहा था। तो वो इस चीज़ को टरका रहा था कि उनसे कह दो कि मैं मतलब अभी मेरे पास टाइम नहीं है और इस समय पॉसिबल नहीं है कि मैं उनसे मुलाकात कर सकूं, मैं बिज़ी हूं, और ये भी बता देना कि आगे के कुछ सप्ताह तक मैं बिज़ी ही रहूँगा, इसीलिए वो मेरे पास मुझसे मिलने के लिए ना आए क्योंकि मुलाकात नहीं हो पाएगी। क्लियर चिल्ड्रन? आगे देखते हैं। बट as soon as the servant stepped out of the room, it struck Bipin Babu that Chunni might remember something about the 1958 trip. There was no harm in asking him. और जैसे ही सर्वेंट बिपिन बाबू का ये संदेश ले करके जा रहा होता है देने के लिए, किसको? चुन्नीलाल को, तो अचानक ये जो बिपिन बाबू हैं इनको याद आता है कि अरे हाँ, ये तो मेरा बचपन का दोस्त है और इसको सारी बातें तो ज़रूर मालूम हुई होंगी, और चलो क्यों ना मैं इससे फिर से पूछ लेता हूँ कि आखिर मैं रांची गया हूँ कि नहीं, क्योंकि ये मेरा बचपन का दोस्त है, इसे मैं क्या कहाँ जाता हूँ, ये सारी बातें इसको भी मालूम रहती हैं। इसलिए क्या किया बिपिन बाबू ने, देखते हैं। Bipin Babu hurried down the stairs and into the living room. Chunni was about to leave, but seeing Bipin Babu appear, he turned round hopefully. और ये जो बिपिन बाबू हैं वो तुरंत जल्दी से स्टेयर से नीचे उतरे, क्योंकि उनका कमरा ऊपर था, तो ये सीढ़ी से नीचे उतर करके चुन्नीलाल से मिलने के लिए आए। तो जैसे ही वो वहाँ पहुँचे थे ना, तो चुन्नीलाल उठ करके जाने ही वाला था, लेकिन जब उसने बिपिन बाबू को देख लिया तो वो रुक गया। बिपिन बाबू डिडंट बीट अबाउट द ब्रश। चिल्ड्रन, डिडंट बीट अबाउट द ब्रश मतलब घुमा फिरा करके बात करना नहीं चाहता था बिपिन बाबू, इसलिए उन्होंने सीधे सीधे चुन्नीलाल से पूछा। घुमा फिरा करके बात करने के बजाय सीधे सीधे उन्होंने पूछा, लिसन चुन्नी, आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग, यू हैव अ गुड मेमोरी एंड यू हैव बीन सीइंग मी ऑफ एंड ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम। और वो बोलता है कि देखो चुन्नीलाल, तुम्हारी अच्छी मेमोरी है और तुम अक्सर मुझे सी ऑफ करने के लिए जाते हो। जस्ट थ्रो योर माइंड बैक एंड टेल मी, डिड आई गो टू रांची इन 1958? और बोलता है बिपिन बाबू चुन्नीलाल से, ज़रा याद करो कि क्या मैं 1958 में रांची गया था? चुन्नी सेड 1958, इट मस्ट हैव बीन 1958 और वॉज इट 1959? वो कहता है हाँ, हो सकता है या तो 1958 होगा नहीं तो 1959 होगा। यू आर श्योर दैट आई डिड गो टू रांची? अब कंफर्म करता है, पूछता है चुन्नीलाल से बिपिन बाबू की, क्या तुमको कंफर्म है कि मैं रांची गया था? तो अब चुन्नीलाल भी कंफर्म कर देता है कि हाँ, बिपिन चौधरी रांची गए थे। चुन्नीज लुक ऑफ अमेजमेंट वॉज नॉट अनमिक्सड विद वरी। अब
चुन्नी के जो चेहरा था, जो फेशियल एक्सप्रेशन थे, उसमें कोई अमेजमेंट नहीं समझ में आ रही थी। मतलब वो नॉर्मली बात कर रहा था। डू यू मीन यू हैव डाउट अबाउट हैविंग गॉन एट ऑल? तो चुन्नीलाल पूछता है कि ये बात तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? क्या तुम्हें डाउट है क्या कि तुम वहाँ नहीं गए थे? डिड आई गो? डू यू रिमेंबर क्लियरली? तो बिपिन चौधरी बोलता है कि नहीं नहीं, तुम्हें तो याद होगा ना, तुम्हें अच्छे से याद है कि मैं रांची गया था। चुन्नी sat down on the sofa, fixed बिपिन बाबू with a long hard stare and said, अब चुन्नीलाल आराम से सोफे पर बैठ जाता है और बिपिन चौधरी को टकटकी निगाह से देखता है और कहता है, बिपिन, हैव यू टेकन टू ड्रग्स और समथिंग? बोलता है, क्या तुम कुछ पिए हुए हो क्या? यानी कुछ ऐसी चीजें नशा वशा करे हो क्या जिसके कारण तुम ऐसा फजूल सा क्वेश्चन मुझसे पूछ रहे हो? As far as I know, you had a clean record where such things were concerned. I know that old friendship don't mean much to you, but at least you had a good memory. अब चुन्नीलाल बोलता है कि मैं ये चीज़ को तो अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम्हारी याददाश्त बहुत अच्छी है। भले ही मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, भले ही क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले वो अपने सर्वेंट से बोल रहा था ना कि उनसे कह दो कि अभी मैं बहुत बिजी हूँ या मिलना नहीं चाहता, तो इस तरह से उसने इस चीज़ को रियलाइज़ किया और उसने ये बोला कि मुझे मालूम है कि तुम्हारी मेमोरी बहुत ज़्यादा अच्छी है। और उसके बाद आगे क्या ऐड करता है चिल्ड्रन? यू कांट रियली मीन दैट यू हैव फॉरगॉटन अबाउट द रांची ट्रिप। ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम रांची ट्रिप के बारे में भूल जाओ। क्यों? क्योंकि तुम्हारी याददाश्त बहुत बहुत अच्छी है। बिपिन बाबू हैड टू टर्न अवे फ्रॉम चुन्नीज इनक्रेडियस स्टेयर। अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है चिल्ड्रन कि जो बिपिन बाबू हैं वो चाह रहे थे, वो टकटकी लगा करके चुन्नीलाल देख रहा था ना, इसीलिए वो अब उसके सामने से हट जाना चाहते थे। डू यू रिमेंबर व्हाट माई लास्ट जॉब वॉज? आस्क्ड चुन्नीलाल। तब चुन्नीलाल ने क्या कहा चिल्ड्रन? चुन्नीलाल ने बिपिन चौधरी से पूछा कि अच्छा ये बताओ, क्या तुम्हें मालूम है कि मैं क्या काम करता था? ऑफ कोर्स यू वर्कड इन अ ट्रैवल एजेंसी। बिपिन चौधरी बोलता है, अरे हाँ बिल्कुल याद है मुझे, तुम तो ट्रैवल एजेंसी में काम करते थे। यू रिमेंबर दैट एंड यू डोंट रिमेंबर दैट इट वॉज आई हु फिक्स्ड अप योर रेलवे बुकिंग फॉर रांची? तो अब चुन्नीलाल कहता है, अरे तुम्हें इतना याद है कि मैं ट्रैवल एजेंसी में काम करता हूँ, तो तुम ये कैसे भूल गए कि मैं ही तो था जिसने तुम्हारे लिए टिकट बुक कराई थी रांची के लिए? और आगे बताता है, आई वेंट टू द स्टेशन टू सी यू ऑफ। और मैं तो तुम्हें रांची के लिए रवाना होने के लिए प्लेटफॉर्म पर भी आया था और तुम्हें स्टेशन पर सी ऑफ करने के लिए भी आया था। और याद दिलाता है, बोलता है कि मैं जब तुम्हारे पास स्टेशन में सी ऑफ करने के लिए आया था तो उस समय जब कंपार्टमेंट में तुम गए तो उस समय वन ऑफ द फैंस इन योर कंपार्टमेंट वॉज नॉट वर्किंग। तुम्हारा कंपार्टमेंट जो था उसका जो पंखा था वो काम नहीं कर रहा था। आई गॉट एन इलेक्ट्रीशियन टू फिक्स इट। और मैं ही तो था जिसने इलेक्ट्रीशियन को बुला करके तुम्हारे कंपार्टमेंट का जो पंखा खराब था, चल नहीं रहा था, मैंने इलेक्ट्रीशियन को बुलाया था जिसके कारण उसने उस पंखे को ठीक कर दिया था और वो चलने लग गया था। हैव यू फॉरगॉटन एवरीथिंग? और बोलता है, क्या बोल रहे हो तुम? ये सारी बातें तुम क्या भूल गए हो? चुन्नीलाल बड़े ही आश्चर्य होते हुए बिपिन चौधरी से कहता है, वॉट एवर। चिल्ड्रन, जब चुन्नीलाल बहुत आश्चर्यचकित होकर के ऐसे कहता है कि क्या तुम्हें कुछ भी नहीं याद है, तो अब आगे क्या बोलता है? वॉट एवर इज़ द मैटर विद यू, यू डोंट लुक टू वेल यू नो। और फिर बोलता है कि लगता है कुछ ऐसा कुछ मैटर है, कुछ ना कोई मैटर तो है ही जिसके कारण तुम एकदम से स्वस्थ नहीं लग रहे हो।
इस तरह से जो चुन्नी लाल है ये क्वेश्चन करता है। This is all for today, children. The remaining part of the story will read in session 2. Till then, keep revising the course and stay safe. Thank you.